Welcome you all in the lecture of engineering graphics and design. In the last lecture we have studied about the cycloid, how to draw the cycloid, how to draw the epicycloid. In this lecture we are going to study about the hypocycloid and spiral. So let's start. First of all, what is hypocycloid? So hypocycloid is the curve which is generated by the circle when it's roll in the another circle. Okay. Epicycloid is the curve generated by the circle when it is rolled from the outside of the circle, and as we discussed earlier, right? So let's start with the problem. This one is the epicycloid which is rolling outside the circle. This one is the directing circle and this one is the rolling circle, right? So hypocycloid. So draw the locus of a point on the periphery of a circle which rolls from the inside of a curve path. Take the diameter of the rolling circle is the 50 mm and radius of the directing circle is 75 mm. So here the directing circle radius is capital R 75 mm and the rolling circle radius is 50 mm. Small r is equal to 25 mm. So what is theta? Theta is equal to the small r divided by capital R multiplied by 360 degree. Okay, so here the angle is same 120 degree, but first of all what we have to do, first draw the radius r, capital radius r, which is 75 mm long. Then draw the arc from the O point. Then draw the circle of 25 mm radius. But how you can draw it? First of all, mark the point P here and then take the distance 25 mm on this OP line and create the center and then draw the circle. Okay, and this one is rolling in the anti-clockwise direction. Mark the angle theta 120 degree. Theta is equal to r by r multiplied by 360 degree. So it is 120 degree. Then divide the 120 degree into the 8 equal part. Is why 8 equal part? Because we divide the circle in 8 equal parts. Okay. After that, draw the arc from the center point. This one is not required. Mark the C1, C2, C3, C4 up to C8. Here one point is missing. Here you have to divide the circle into the 8 equal part. First draw this line and then draw perpendicular to the CP. Okay. Then draw 45 degree angle line, again 45 degree angle line, and then draw the arc passing through the 121728. Okay, so from that you get different arcs from the different lines. Okay, as we draw in the epicycloid, it's the same procedure. Now this one is rotated into the anti-clockwise direction, so our rounder is also rotated into the anti-clockwise direction. Here is the 1 point C1, right? So C1, here is the 1 point. Yeah, right. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now take the radius CP on the rounder, put the rounder on the C1 point and then create the arc on the arc passing through the 17 point. Okay, so this one is the first arc. C2 is from the C2, second arc on the 26 point arc, then C3, then C4, C5, C6, C7 and C8, and then connect that particular point. So we get the hypocycloid. Okay,
एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल जैसे ईपी साइक्लोइड में किया था, सर्कल को डिवाइड करना है। बट सर्कल को डिवाइड करते हुए क्या ध्यान रखना है, जो आपकी एंगल डिवाइड करती हुई लाइन है उसके रेफरेंस से ही सर्कल को डिवाइड करना है। मतलब उसके पहले 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, जैसे 2, 6 हमने ड्रॉ किया हुआ है, और उसके बाद में 1, 5 एंड 7, 3। ओके गुड। उसके बाद में क्या करना है, आपको सिंपल राउंडर को ओ पॉइंट पर पुट करना है, ओ से 1 तक का डिस्टेंस लेना है और एक आर्क ड्रॉ करना है पूरा। उसके बाद में ओ से 2 ओ पर राउंडर, 2 पर पेंसिल, और 2 और 6 को कवर करती हुई आर्क ड्रॉ करनी है। सेम 3 और 5 को कवर करती हुई आर्क, और लास्ट वन इज दी 4 को कवर करती हुई आर्क। डन। उसके बाद में क्या करना है, सीपी जितना डिस्टेंस ले लेना है राउंडर पर, C1 पर राउंडर रखना है, और 1, 7 में से जो आर्क पास हो रही है उस पर दूसरी आर्क ड्रॉ करनी है आपको, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट P1 मार्क करना है। ओके। उसके बाद में C2 पर राउंडर, और 2, 6 में से पास होती हुई आर्क पर आपको इंटरसेक्शन क्रिएट करना है। सेम C3 पर राउंडर, 3 में से पास होती हुई आर्क पर आपको इंटरसेक्शन क्रिएट करना है, तो P3 पॉइंट आपको मिल जाएगा। और इसी तरह से कंटिन्यूअस आपको 8 पॉइंट तक करना है। और यहाँ पे राउंडर देखो किस तरह से हम रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, हमारा सर्कल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोल हो रहा है, इसीलिए। क्लियर हो? गुड। हो जाएगा ये। ओके। तो हाइपोसाइक्लोइड मतलब साइक्लोइड हमारा कंप्लीट हो गया, उसके पहले इन्वॉल्यूट कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज द स्पाइरल। सो ये जो है हमारा इंजीनियरिंग का उसका लास्ट लेक्चर है। स्पाइरल एक बार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में ये हमारा चैप्टर जो है इंजीनियरिंग का उस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो 2 चैप्टर जो है वो हमारे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम ऑर्थोग्राफिक स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। तो आपकी मे बी मिड सेम वगैरह शायद हम लेंगे, तो वो MCQ बेस्ड रहेगी, ऑनलाइन रहेगी। तो इसके लिए MCQ का मटेरियल जो है वो भी मैं आपको थ्रू गूगल क्लासरूम अपलोड कर दूंगा, राइट। तो वो आप तक पहुंच जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट स्पाइरल। ओके। तो स्पाइरल कैसे क्रिएट होता है, तो यहाँ देखो प्रॉब्लम क्या डिफाइन किया हुआ है, ड्रॉ अ स्पाइरल ऑफ 1 कॉन्वोल्यूशन। 1 कॉन्वोल्यूशन मतलब क्या होता है, पूरा 360 डिग्री रोटेशन होता है, राइट। 1 कॉन्वोल्यूशन मतलब क्या होता है, 360 डिग्री रोटेशन। टेक डिस्टेंस PO इज 40 mm। डिस्टेंस कितना लेना है आपको, 40 mm कंसीडर करना है। ओके। तो आर्किमिडियन स्पाइरल जो है उसका 1 कॉन्वोल्यूशन कैसे कंप्लीट होता है, पूरे 360 डिग्री रोटेशन के बाद। ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 40 mm रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके। उसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है, और उसके बाद में यहाँ पे P पॉइंट है। ओके। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपने नंबरिंग दे दिया। उसके बाद में ये जो OP लाइन है, मतलब यहाँ पे सेंटर में सपोज वो पॉइंट है, आप सोच लो यहाँ पे वो पॉइंट है, तो OP जो है उसको आपको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे इक्वल नहीं दिख रहा है, बट आपको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। क्लियर हो? उसके बाद में क्या करना है, सिंपल O पॉइंट पर राउंडर रखना है। कहाँ पे आप राउंडर रखोगे, O पॉइंट पर राउंडर रखना है। यहाँ पे सपोज O पॉइंट है हमारा। ओके। O पॉइंट पर राउंडर रखना है, ये जो पॉइंट है वो O पॉइंट है। O से यहाँ पे पहले नंबरिंग दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद में O से 1 पर राउंडर और आर्क, कहाँ तक, जो हमारा 1 नंबर है वहां तक। O से 2 पर राउंडर और आर्क, O से 3 पर राउंडर और आर्क, O से 4 पर राउंडर और आर्क, O से 5 पर राउंडर एंड आर्क, O से 6 जितना डिस्टेंस लेना है आपको आर्क ड्रॉ करनी है। कहाँ तक, तो ये 6 लाइन जहाँ पे जा रही है वहां तक। O7 जो है उसमें 7 तक, और O8 तो यहाँ पे ही है। और इसको क्या करना है, सिंपल यहाँ से कनेक्ट करना स्टार्ट करना है। देखो ये कैसी चीज़ है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका यूज़ कहाँ पे वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, बराबर है। तो ये स्पाइरल पूरा जो है वो जनरेट हो जाता है इस तरह से। सपोज यहाँ पे कोई एक इंसेक्ट है। ओके। इंसेक्ट जो है वो P पॉइंट है, राइट। वो क्या करना है, वो O पॉइंट तक जाने की शुरुआत कर देता है। क्या करता है, O पॉइंट तक मूव करने की शुरुआत करता है। और ये जो सर्कल है वो भी क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। ओके। सर्कल ये जो है ये डिस्क है। सपोज आपके पास कोई एक डिस्क है, और डिस्क के एक छोर पर क्या है, इंसेक्ट है यहाँ पे, राइट। वो क्या कर रहा है, उसके सेंटर पर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये जो डिस्क है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक पूरा रिवोल्यूशन जब कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरा 360 डिग्री रोटेशन जब सर्कल का कंप्लीट हो जाता है,
सर्कल रोटेट करना शुरू करता है तो 90 डिग्री पहले होता है कंप्लीट, उसके बाद में फिर से 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, मतलब पूरा 360 डिग्री रिवोल्यूशन जैसे कंप्लीट इसका हो जाएगा तो इंसेक्ट जो है वो उसके सेंटर तक पहुंच जाता है, बराबर है। बट जैसे डिस्क रोटेट करना शुरू करती है, इंसेक्ट इस लाइन पर मूव हो रहा है O से 1 तक, बट अभी ये जो लाइन है वो कहाँ पे आ गई, क्योंकि सर्कल रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो हमारी लाइन है वो अभी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। और इंसेक्ट जो है उसने कितना ट्रैवल किया, P से 1 पॉइंट तक का, तो ये P1 पॉइंट हो गया। सेम डिस्क रोटेट हो रही है, यहाँ तक पहुंची, तो इंसेक्ट भी मूव करता हुआ यहाँ तक पहुंचा। सेम डिस्क जो है रोटेट होती हुई आगे बढ़ी, वो इंसेक्ट भी आगे बढ़ा अपनी लाइन पर। सेम यहाँ पे इंसेक्ट आगे मूव करता जा रहा है, वो कहाँ पे पहुंचेगा, सेंटर तक। जब एक पूरा रिवोल्यूशन 360 डिग्री का कंप्लीट हो जाएगा, इंसेक्ट जो है वो O पॉइंट तक पहुंच जाएगा, बराबर है। और ये जो डिस्क है वो भी 360 डिग्री जो है पूरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होनी है, बराबर है। तो क्लियर हो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसेक्ट जो है वो P से O पॉइंट तक मूव हो रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन पर ही मूव हो रहा है, बट डिस्क रोटेट हो रही है उसके साथ साथ में, राइट। तो डिस्क रोटेट होगी तो इंसेक्ट भी रोटेट होने वाला है। तो ये जो हमारी लाइन है वो 45, जैसे डिस्क आगे बढ़ेगी रोटेट होती हुई, तो ये लाइन भी जो है वो आगे बढ़ने वाली है, तो इंसेक्ट भी उसके साथ साथ में ही रोटेट होने वाला है। बट इंसेक्ट जो है वो उसकी डायरेक्शन में, ओपी डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, राइट। तो कुल मिला के 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो O पॉइंट तक पहुंच जाएगा। डन, क्लियर हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है तो स्पाइरल ऑफ 2 कॉन्वोल्यूशन। तो 2 कॉन्वोल्यूशन मतलब क्या होता है कि भाई पूरा 360 डिग्री रोटेशन देख लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले हम पढ़ते हैं। P पॉइंट इज 80 mm फ्रॉम पॉइंट O। कितना है, 80 mm पॉइंट O से डिस्टेंस है P पॉइंट का। इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दी O। क्या कहते हैं कि भाई O पॉइंट तक ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है, रीचेज इट इनटू दी 2 रिवोल्यूशन। तो क्या है भाई, 2 रिवोल्यूशन मतलब 720 डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तब O से P पॉइंट तक मूवमेंट हो जाती है, राइट। तो किस तरह से होगा, तो सबसे पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल 40 mm रेडियस लेके ही ड्रॉ करना है, ओके। उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 कॉन्वोल्यूशन। तो 2 कॉन्वोल्यूशन मतलब 720 डिग्री रोटेशन हुआ। तो यहाँ पे जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा 8 तक आए तो। बट अभी सेकंड रिवोल्यूशन भी हमें कंटिन्यू रखना है, तो 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके। तो सर्कल जो है वो पूरा 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है और यहाँ 16 तक हमने नंबरिंग किया हुआ है, ओके। तो ये जो लाइन है ओरिजेंटल, वो हमने क्या किया था, लास्ट 1 कॉन्वोल्यूशन था तो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ पे 2 कॉन्वोल्यूशन है तो 16 इक्वल पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ओके। तो 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे होगा, नंबरिंग जैसे लास्ट में किया था सेम टू सेम यहाँ पे करना है आपको। 1 2 3 4, देखो ये 1 नंबर थोड़ा आगे चला जा रहा है, बट आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से एग्जैक्टली। और आपको इस लाइन को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अभी क्या है, सिंपल है, हमारा पॉइंट जो है वो P पॉइंट जो है वो O पॉइंट तक पहुंचने वाला है। तो कैसे पहुंचेगा, 1 यहाँ सेंटर से राउंडर रख के आपको क्या करना है, सिंपल 1 से आर्क, 2 से आर्क, 3 से आर्क, 4 से आर्क, 5 से आर्क। O पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे, ओके। और रेडियस हमारी कितनी है, 80 mm, ओके। तो ये जो है वो आपने क्या लिया है, 80 mm ले लिया है डिस्टेंस, ओके। 80 mm को क्या करना है, 16 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। और उसके बाद में ये कहां तक पहुंचे, हम 7 नंबर पॉइंट तक पहुंच गए, बराबर है। 8 9 8 जो है वो पूरा सर्कल आएगा, तो यहां पे वो स्किप किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपल 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 7 8 पूरा सर्कल होगा। उसके बाद में फिर से ये जो हुआ वो 9 नंबर है, 10 नंबर यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा मार्किंग में मिस्टेक है, बट आपको ध्यान रखना है, ओके। 10 से ये जो है वो 9 वाला है नंबर, उसके बाद में 10 वाला कहाँ तक जाएगा, उसकी लाइन तक। ये जो है 10 नंबर, तो उसको देख के आपको यहाँ 10 से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंच जाना है, ओके, डन। उसके बाद में 11 12 13 14 15, ओके। और लास्ट में जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है और उसको
कनेक्ट करना है। तो ये हो गया P से O पॉइंट तक की मूवमेंट, जब डिस्टेंस कितना है 80 mm है और 2 रिवोल्यूशन में ये पूरा कुछ कंप्लीट हो रहा है, तो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आर्किमिडियन स्पाइरल, ओके, 2 कन्वोल्यूशन के लिए। तो आज के दिन में हमने क्या कंप्लीट किया, एक जो था वो हाइपोसाइक्लॉइड, उसके बाद में स्पाइरल फॉर दी 1 कन्वोल्यूशन एंड स्पाइरल फॉर दी 2 कन्वोल्यूशन। क्लियर हो आप लोग? ओके, थैंक यू वेरी मच टू अटेंड द लेक्चर, थैंक यू।